Jai Gurudev. Welcome to this session on Upakarma. The Upakarma is the changing of the sacred thread that happens once every year on the Shravan Purnima for Yajurvedis and for the Shravan Nakshatra in the Shravan month for the Rigvedis. Depending on what you say during your Abhivade, whether you say Rigveda or Yajurveda, you can follow the appropriate procedure on the appropriate day. In the video that follows, we will be doing the whole ceremony as a call and repeat. So the Panditji will be chanting and you can repeat after Panditji. If you don't know the mantras or if you're not comfortable, it's perfectly okay to just listen and follow on with the motions. Now, what is the Upakarma? What are we doing in this whole ceremony? The Yajñopavita, the sacred thread, is just a thread made out of cotton. Yet, when the devatas are invoked, when the energies are invoked, that is when it becomes the Yajñopavita. So that's what we are going to be doing. We are going to be honoring and invoking the various deities into the Yajñopavita and then putting it on, then accepting it, then upholding it. So what are these devatas? In the mantras we chant, we are invoking 9 different devatas. Your Yajñopavita is made up of 9 threads, threaded into 3 threads and then tied with a knot. The Tantu Devata or the 9 devatas are, the first one is Omkara. Om, the primordial sound, the vibration of the universe. This is what we invoke in the Yajñopavita first. After Omkar comes Agni. Agni is the fire or the energy. The inherent vibration of the universe leads to energy that allows us to perform, that allows us to do all that we are doing. Then we invoke the Agni. Agni is the fire, the manifest aspect of that energy that permeates this whole universe. After Agni comes Naga. Naga or the serpent is a metaphor for the prana, the energy that's inherent in us, that is present in the Kundalini, that moves through all the chakras and that manifests all the emotions, that manifests all the activity in us. Having invoked the Naga, after the Naga comes Soma. Soma is the moon and moon represents the mind. We can have a lot of energy, but if we don't put our mind to it, nothing else works. So channelizing that energy and manifesting it in the right way, so we invoke Soma. Then comes Pitru. The Pitru, or those who went before us, those who showed us the way, that gives us direction in life. Having invoked the Pitru, next comes Prajapati. Prajapati, Praja means the population, the people, and Pati is the Lord. There is a lordship in creation, and that energy that allows us to have those leadership qualities. That is what Prajapati represents. In each one of us, there is an inherent ability to take responsibility and to lead. That energy is invoked in the thread, and so all these different energies which give rise to various qualities are invoked in the thread and then we put it on. That's what makes it sacred. After Prajapati comes Vayu. Vayu or the air is so essential for us to exist. Vayu also represents the ability to change, the ability to move. In our life, if everything becomes stagnant, then we feel, oh my God, what's happening? Vayu allows us to feel that freedom, the freedom of movement. After Vayu, and then comes Surya. Surya is the sun. The sun is the source of energy on this planet. This is what allows all this, the plants, animals, life to flourish. So this abundance comes from Surya. And finally, Vishvedeva. All the other divinity in this existence, we invoke all of that in the Yajñopavita. And that, the invoking of all these 9 Tantu Devatas, this is what makes the sacred thread from just a thread to something divine. Having done that, then we
wear the sacred thread, chanting Yajñopavitam Paramam Pavitram. This is the ultimately pure thing. It's the divinity that makes us pure. Yajñopavitam Paramam Pavitram Prajapatehe Yat Sahajam Purastad. From time immemorial, this has brought purity. Ayushyam Agriyam. Ayushyam, it gives us long life. Agriyam, Agra means to move forward. It allows us to move forward in life. Pratimancha Shubhram, Pratimuncha Shubhram. Shubhra means white, it makes us pure. Yajñopavitam Balamastu Tejaha. Balam and Tejaha, it gives us strength and brilliance. And that is what we are doing when we wear this sacred thread. Just wearing the sacred thread is not enough, but to use this, to use that energy to make sure that we are doing our Gayatri, to make sure that we are doing our Japa, to follow through on this whole practice, which is what we say in the Sankalpa. Let it give me the ability, Nitya Karma Anushthana. Let me be able to follow and do my duties and live up to those ideals that I am capable of. Having said this, with this sankalpa, with this intention, we do the upakarma. So how do we do this? Make sure that you're sitting in a clean place. Make sure you have your Panchapatra near you, the new Yajñopavita, and some of the things that you'd like to offer and invoke the divinity. Some rice, akshata, some flowers, chandan, whatever it is that you'd like to keep with you. For those of us who are going to be doing the Pitru Tarpan, Pitra means those who have gone before us, our ancestors. So if your father is still alive, then you should not be doing Pitru Tarpan. But if your father has joined the ancestors, then you can do the Pitru Tarpan. You gain the ability to do the Pitru Tarpan. Tarpan means, it comes from the word Tripti, which means contentment. And Gurudev explains so beautifully about what does Tarpan really mean. You can go and watch it in his YouTube channel. But this Tarpan that we are going to be doing brings great contentment, not only to oneself, but also to all those who have moved forward in life. So if you're going to be doing the Tarpan, then you make sure you also keep some black sesame seeds, black til seeds along with you. The Pandits will be chanting. Feel free to chant along with them or to chant after them or to just listen to the chanting and do the actions. May this year ahead be fruitful and successful, and may Gurudev's grace shower upon all of us and take us to our goal, whatever that is, material, spiritual. And may we find this fulfillment as soon as possible. उपाकर्म, हर वर्ष श्रावण मास में श्रवण पूर्णिमा पर यजुर्वेद के अध्यायी अनुयायी और जो श्रवण नक्षत्र आता है उस दिन ऋग्वेदी अपना जनेऊ बदलते हैं और नया जनेऊ पहनते हैं. इसको उपाकर्म कहा गया है. तो यदि आप अपने अभिवादन करते हुए यदि आप ऋग्वेद अपने आप को घोषित करते हैं तो आप श्रवण नक्षत्र के दिन अपना जनेऊ बदलें, और यदि आप यजुर्वेद के अनुयायी हैं तो फिर आप श्रवण पूर्णिमा पर अपना जनेऊ बदल सकते हैं. हमारे पंडित जी मंत्र पढ़ेंगे और इस संक्षिप्त तरीके से आज हम उपाकर्म करने जा रहे हैं. आप उनको सुनकर उनके पीछे पीछे बोल सकते हैं. यदि मंत्र उच्चारण में आपको कुछ कठिनाई आए, कोई बात नहीं, श्रवण कर लीजिए और वो जो जैसे बताते हैं वैसे करते चले जाएं. तो उपाकर्म में करते क्या हैं? जो यज्ञोपवीत है वो तो धागा है, वो 9 धागों का समूह है. 9 धागों को 3 धागों में पिरोकर फिर उसमें एक गांठ लगता है और इसी को यज्ञोपवीत कहते हैं. तो जब हम उपाकर्म करते हैं तो शुरुआत तो होती है धागे से, पर उस धागे को यज्ञोपवीत बनाते कैसे हैं? अलग अलग तंतु देवताओं का उनमें आवाहन करके.
तो ये तंतु देवता क्या है, कौन है, आइए जानते हैं। तो पहले ओमकार आवाहन करते हैं। तो पहले तंतु देवता है ओमकार। माने ये जो सृष्टि का मूल है, जो तरंग है, जो स्पंदन है, उसी को हम अपने यज्ञोपवीत में आवाहन करते हैं। ओमकार के बाद अग्नि को आवाहन करते हैं। अग्नि माने जो ऊर्जा हमारे भीतर, जो कार्य शक्ति की क्रियाशील होने की जो ऊर्जा है, उस अग्नि तत्व को हम आवाहन करते हैं। अग्नि के बाद नाग। नाग माने क्या? नाग देवता माने ये ना समझो कि कहीं कोई प्राणी का हम बात कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने बहुत सुंदर एक प्रतीकात्मक ये बनाया। नाग देवता माने हमारे भीतर जो कुंडलिनी शक्ति है, उसी को नाग के रूप में देखा। तो हम अपने भीतर की शक्ति, जिससे हमारे पूरे कृत्य चलती है, उस कुंडलिनी शक्ति का आवाहन करते हैं। नाग देवता के बाद सोम। सोम माने चंद्रमा, और चंद्रमा मन का प्रतीक है। तो मनस शक्ति को भी इस यज्ञोपवीत में आवाहन करते हैं। और फिर पितृ। पितृ माने हमारे आगे जो गए हैं, जिनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यदि एक तरह से देखें तो हमारे भीतर जो कुछ भी है, हमें अपने पितरों से ही तो मिला है। उनका अनुभव कहीं न कहीं हम तक पहुंच ही रहा है, और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। उसको भी हम इस यज्ञोपवीत में आवाहन करते हैं। तत्पश्चात प्रजापति। प्रजापति माने हम सबके भीतर कहीं न कहीं एक लीडरशिप क्वालिटी ज़रूर है। कहीं न कहीं चुनौती लेने का, कहीं न कहीं लोगों को इकट्ठा करके आगे ले जाने का, केवल अपना ही नहीं औरों का भी भला करने। और प्रजापति इसी के प्रतीक हैं। माने प्रजापति जो पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, उनको आवाहन करते हैं। तो हमारे भीतर भी ये लीडरशिप क्वालिटी उत्पन्न हो। इसके बाद वायु देवता का आवाहन करते हैं। वायु माने क्या? जो चलनशील है, जो कहीं रुकता नहीं है। अपने जीवन में भी इसी तरह से हमारा जीवन भी आगे चलता जाए, कहीं रुकावट ना आए। और फिर सूर्य। सूर्य माने प्रकाश। कहीं न कहीं हमारे जीवन में भी ज्ञान का प्रकाश इसी तरह से आ जाए, सूर्य देव को आवाहन करते हैं। और आखिर में विश्वे देवा। विश्वे देवा माने जो विश्व के देव हैं, जितनी भी दिव्यता इस विश्व में है, उन सब का आवाहन करते हैं कि ये यज्ञोपवीत केवल धागा न रहकर सभी देवताओं का वास बन जाता है, सभी दिव्यता का वास बनता है। और इसे धारण करने पर सच में हमारे भीतर हम केवल धागा ही धारण नहीं कर रहे हैं, ये सारी दिव्यता हम धारण कर रहे हैं। इस भाव से आइए आज इस दिव्य यज्ञोपवीत को धारण कर कर हम केवल अपने ही जीवन में नहीं, पूरे समाज में उपयोगी हो जाते हैं और प्रकाश फैलाने के काबिल बनते हैं। तो यही संकल्प से हम आज उपाकर्म करेंगे। उपाकर्म करने के लिए जो भी सामग्री आपको चाहिए हो, आप उसको इकट्ठा कर लें। एक स्वच्छ जगह पर बैठ जाएं। पंचपात्र हो, यज्ञोपवीत हो, और अक्षत, फूल इत्यादि जो भी आपको यज्ञोपवीत को पूजन करने के लिए, आवाहन, दिव्यता का आवाहन करने के लिए अपने पास रख लें। यदि आप पितृतर्पण के योग्य हो, यदि आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया हो, तो आप पितृतर्पण करने के योग्य होते हैं। ऐसा हो तो आप काला तिल भी अपने पास रख सकते हैं। और जब पितृतर्पण की जाएगी तो केवल जिनको पितृतर्पण का अधिकार है वही पितृतर्पण करें। यदि आपके पिताजी शरीर में हो तो फिर उनको वो अधिकार होता है, और बाकी सब लोग उस समय पर शांत बैठे रहें जब तक पितृतर्पण वाले लोग पितृतर्पण ना पूरा कर लें। आइए उपाकर्म की विधि प्रारंभ करते हैं। ओम अच्युताय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम गोविंदाय नमः।
अच्युतानन्तगोविन्देभ्यो नमः। ॐ अच्युतानन्दगोविन्देभ्यो नमः। प्राणानायम्य प्राणानायम्य प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः परब्रह्म परमात्मा देवता परब्रह्म परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दः देवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः प्राणायामे विनियोगः करं प्रक्षाल्य अथ संकल्पः अथ संकल्पः ॐ विष्णोः विष्णोराज्ञया ॐ विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्रीहरेः श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे महामेरोः शुभदक्षिणे पार्श्वे श्रीमद्गोदावर्याः शुभदक्षिणे तीरे शुभदक्षिणे तीरे बौद्धावतारे रामक्षेत्रे सह्यपर्वते कल्याणनगर्या अस्मिन् वर्तमानकालव्यवहारिके प्रभवादिषष्ठिसंवत्सराणां मध्ये श्रीप्लवनाम संवत्सरस्य दक्षिणायने वर्षऋतौ श्रावणमासे शुक्ले पक्षे अद्य चतुर्दश्यां शुभतिथौ वासरः वासरस्तु मन्दवासरयुक्तायाम् एवं गुणविशेषणविशिष्टायाम् पुण्यायां पुण्यकाले महापुण्यशुभतिथौ ममोपात्तदुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् उपाकर्माङ्ग यज्ञोपवीतधारणम् ममोपात्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् नित्यकर्मानुष्ठान योग्यतासिद्ध्यर्थम् उपाकर्माङ्ग यज्ञोपवीतधारणं करिष्ये तन्निर्विघ्नतासिद्ध्यर्थम् गुरुगणपतिप्रार्थनं च करिष्ये ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् महागणपतये नमः महागणपतये नमः गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणाम् निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः आदौ यज्ञोपवीतपूजनं करिष्ये आदौ यज्ञोपवीतपूजनं करिष्ये वक्रतुण्डमहाकाय वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः आदौ यज्ञोपवीतपूजनं करिष्ये आदौ यज्ञोपवीतपूजनं करिष्ये ओंकारोऽग्निश्च नागश्च ओंकारोऽग्निश्च नागश्च सोमः पितृप्रजापतिः सोमः पितृप्रजापतिः वायुः सूर्यो विश्वे देवा वायुः सूर्यो विश्वदेवा इत्येते तन्तुदेवताः इत्येते तन्तुदेवताः ब्रह्म विष्णु महेश्वरात्मका ब्रह्म विष्णु महेश्वरात्मका तन्तुदेवताभ्यो नमः तन्तुदेवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि पादारविन्दयोः पाद्यं समर्पयामि पादारविन्दयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखारविन्दे आचमनं समर्पयामि मुखारविन्दे आचमनं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि आदौ यज्ञोपवीतपूजनं करिष्ये आदौ यज्ञोपवीतपूजनं करिष्ये ओंकारोऽग्निश्च नागश्च ओंकारग्निश्च नागश्च सोमः पितृप्रजापतिः सोमः पितृप्रजापतिः वायुः सूर्यो विश्वे देवा वायुः सूर्यो विश्वे देवा इत्येते तन्तुदेवताः इत्येते तन्तुदेवताः ब्रह्म विष्णु महेश्वरात्मका ब्रह्म विष्णु महेश्वरात्मका तन्तुदेवताभ्यो नमः तन्तुदेवताभ्यो नमः गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि सर्वोपचारार्थे अक्षतान् समर्पयामि सर्वोपचारार्थे अक्षतान् समर्पयामि आदौ सूर्यं दर्शयित्वा आदौ सूर्यं दर्शयित्वा ॐ उद्वयन्तमसस्परे ॐ उद्वयन्तमसस्परे पश्यन्तो ज्योतिरुत्तरम् पश्यन्तो ज्योतिरुत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्म देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् ज्योतिरुत्तमम् ॐ यज्ञ
यज्ञोपवीतम् ॐ यज्ञोपवीतम् परमं पवित्रम् परमं पवित्रम् प्रजापतेर्यत् प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यम् आयुष्यमग्र्यम् प्रतिमुञ्च शुभ्रम् प्रतिमुञ्च शुभ्रम् यज्ञोपवीतम् यज्ञोपवीतम् बलमस्तु तेजः बलमस्तु तेजः इति धृत्वा अजिनं ब्रह्मसूत्रं च अजिनं ब्रह्मसूत्रं च जीर्णं कश्मलदूषितम् जीर्णं कश्मलदूषितम् विसृजामि सदा ब्रह्मन् विसृजामि सदा ब्रह्मन् वर्चो दीर्घायुरस्तु मे वर्चो दीर्घायुरस्तु मे समुद्रं गच्छ स्वाहा समुद्रं गच्छ स्वाहा विराचम्य विराचम्य ॐ अच्युताय नमः ॐ अच्युताय नमः ॐ अनन्ताय नमः ॐ अनन्ताय नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ अच्युताय नमः ॐ अच्युताय नमः ॐ अनन्ताय नमः ॐ अनन्ताय नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ गोविन्दाय नमः करो प्रक्षाल्य करो प्रक्षाल्य अनेन अनेन मया कृत मया कृता यज्ञोपवीतधारणकर्मणा यज्ञोपवीतधारणकर्मणा श्रीपरमेश्वरः प्रीयताम् श्रीपरमेश्वरः प्रीयताम् अथ देवर्षितर्पणं करिष्ये अथ देवर्षितर्पणं करिष्ये ब्रह्मादयो ये देवाः ब्रह्मादयो ये देवाः तान् देवांस्तर्पयामि तान् देवान् स्तर्पयामि सर्वान् देवांस्तर्पयामि सर्वान् देवान् स्तर्पयामि सर्वदेवगणांस्तर्पयामि सर्वदेवगणान् स्तर्पयामि सर्वदेवपत्नींस्तर्पयामि सर्वदेवपत्नीं स्तर्पयामि सर्वदेवगणपत्नींस्तर्पयामि सर्वदेवगणपत्नीं स्तर्पयामि निवीति निवीति कृष्णद्वैपायनादयो कृष्णद्वैपायनादयो ये ऋषयः ये ऋषयः तान् ऋषींस्तर्पयामि तर्पयामि तान् ऋषीन् स्तर्पयामि स्तर्पयामि सर्वान् ऋषींस्तर्पयामि तर्पयामि सर्वान् ऋषीन् स्तर्पयामि तर्पयामि सर्वऋषिगणांस्तर्पयामि तर्पयामि सर्वऋषिगणान् स्तर्पयामि तर्पयामि सर्वऋषिपत्नींस्तर्पयामि तर्पयामि सर्वऋषिपत्नीं स्तर्पयामि तर्पयामि सर्वऋषिगणपत्नींस्तर्पयामि तर्पयामि सर्वऋषिगणपत्नीं स्तर्पयामि तर्पयामि प्रजापतिं काण्डऋषिं तर्पयामि तर्पयामि प्रजापतिं काण्डऋषिं तर्पयामि तर्पयामि सोमं काण्डऋषिं तर्पयामि तर्पयामि सोमं काण्डऋषिं तर्पयामि तर्पयामि अग्निं काण्डऋषिं तर्पयामि तर्पयामि अग्निं काण्डऋषिं तर्पयामि तर्पयामि
विश्वान् देवान् काण्डऋषींस्तर्पयामि तर्पयामि विश्वान् देवान् काण्डऋषींस्तर्पयामि तर्पयामि सांहितीर्देवता सांहृतिर्देवता उपनिषदस्तर्पयामि तर्पयामि उपनिषदस्तर्पयामि तर्पयामि याज्ञिकीर्देवता 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 उपनिषदस्तर्पयामि तर्पयामि उपनिषदस्तर्पयामि तर्पयामि वारुणीर्देवता वारुणीर्देवता उपनिषदस्तर्पयामि तर्पयामि उपनिषदस्तर्पयामि तर्पयामि हव्यवाहं तर्पयामि तर्पयामि अव्यवाहं तर्पयामि तर्पयामि विश्वान् देवान् काण्डऋषींस्तर्पयामि तर्पयामि विश्वान् देवान् काण्डऋषिं तर्पयामि तर्पयामि ब्रह्माणं स्वयंभुवं तर्पयामि तर्पयामि ब्रह्माणं स्वयंभुवं तर्पयामि तर्पयामि विश्वान् देवान् काण्डऋषींस्तर्पयामि तर्पयामि विश्वान् देवान् काण्डऋषिं तर्पयामि तर्पयामि अरुणान् काण्डऋषींस्तर्पयामि तर्पयामि अरुणां काण्डऋषिं तर्पयामि तर्पयामि सदसत्पतिं तर्पयामि तर्पयामि सदसस्पतिं तर्पयामि तर्पयामि ऋग्वेदं तर्पयामि तर्पयामि ऋग्वेदं तर्पयामि तर्पयामि यजुर्वेदं तर्पयामि तर्पयामि यजुर्वेदं तर्पयामि तर्पयामि सामवेदं तर्पयामि तर्पयामि सामवेदं तर्पयामि तर्पयामि अथर्ववेदं तर्पयामि तर्पयामि अथर्ववेदं तर्पयामि तर्पयामि इतिहासपुराणं तर्पयामि तर्पयामि इतिहासपुराणं तर्पयामि तर्पयामि कल्पं तर्पयामि तर्पयामि कल्पं तर्पयामि तर्पयामि उपवीति भवेयुः उपवीति भवेयुः पितृतर्पणार्थं प्राचीनावीति तर्पणार्थं प्राचीनावीति सोमः पितृमान् सोमः पितृमान् यमोऽङ्गिरस्वान् यमोऽङ्गिरस्वान् अग्निः कव्यवाहनः अग्निः कव्यवाहनः इत्यादयो ये पितरः इत्यादयो ये पितरः तान् पितॄंस्तर्पयामि तर्पयामि तर्पयामि तान् पितॄंस्तर्पयामि तर्पयामि तर्पयामि सर्वान् पितॄंस्तर्पयामि तर्पयामि तर्पयामि सर्वान् पितॄंस्तर्पयामि तर्पयामि तर्पयामि सर्वपितृगणांस्तर्पयामि तर्पयामि तर्पयामि सर्वपितृगणां तर्पयामि 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 सर्वपितृपत्नींस्तर्पयामि तर्पयामि तर्पयामि सर्वपितृपत्नीं तर्पयामि 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 सर्वपितृगणपत्नींस्तर्पयामि तर्पयामि तर्पयामि सर्वपितृगणपत्नीं तर्पयामि 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 ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं पयः ऊर्जं बृहन्तीरमृतं घृतं पयः ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं पयः ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिसृतं ईलालं परिश्रुतं स्वधास्थतर्पयामि पितॄन् सुधास्तर्पयामि पितॄन् तृप्यत 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 उपवीति द्विराचामेत उपवीति द्विराचामेत् उपवीति द्विराचामेत उपवीति द्विराचामेत् द्विराचम्य द्विराचम्य ॐ अच्युताय नमः ॐ अच्युताय नमः ॐ अनन्ताय नमः ॐ अनन्ताय नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ अच्युताय नमः ॐ अच्युताय नमः ॐ
अनन्ताय नमः ॐ अनन्ताय नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ गोविन्दाय नमः अनेन मया कृत अनेन मया कृता देवर्षितर्पण देवर्षितर्पण पितृतर्पणकर्मणा पितृतर्पणकर्मण श्रीपरमेश्वरः प्रीयताम् श्रीपरमेश्वरः प्रीयता मन्त्रहीनं क्रियाहीनं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् वृद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि